Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. This is Zahra Aslam from PS Semester 8 Biotechnology Department, and I'm going to present my topic to all of you and especially to Dr. Faisal. So, here is my topic, that is ethical issues concerned with GMOs. So, these are the contents. What are GMOs? Historical background, categories, biosafety concerns, regulation, ethical issues, pros and cons, and conclusion. So, first of all, I will discuss what are GMOs. GMOs are basically modified organisms, genetically modified organisms whose genetic material or genome has been modified in vitro condition through the transfer of foreign gene in order to get desirable products. GMOs are basically done by recombinant DNA technology, gene splicing, or genetic engineering, or transgenic technology, etc. So here is the historical background of GMOs. So it all started from 1973 when Herbert Boyd and Stanley Cohen made the first genetically modified microbe in 1973. He basically transferred the Stanley Cohen and Herbert Boyer took a kanamycin resistant gene constructed into the plasmid and transferred that gene into E. coli to see the resistance capability of E. coli, and they were succeeded in their experiment. So in this way, the first genetically modified microbe was made. The second is Rudolf Janisch, that created a transgenic mouse by introducing foreign DNA into its embryo, making it the world's first transgenic animal. So the third is in 1983, the first genetically engineered plant, that was tobacco mosaic plant, made was developed by Michael, Richard, and Mary Dell Shilton. Next, so here is the categories of GMOs. Here is the categories of genetically engineered products. So the first category is food. GMOs are a source of modified food items to improve the nutrients availability, increase the shelf life, various desirable products, etc. If we talk about the nutrients availability, so here is example of golden rice. And if we talk about the to increase the shelf life, so here is the example of flavor saver tomato. Flavor tomato was made by the RNA antisense technology, where the expression of enzyme polygalacturonase was reduced. This enzyme is used in the ripening of fruits, vegetables, etc. The second category is is plant and crops. GMOs are a source of modified crops to improve the resistance capabilities against harmful organisms. Example, BT cotton. The third is microbes. GMOs are a source of modified microbes to produce desirable products, and microbes that are able to survive in unfavorable conditions. Example, as we have discussed in history, kanamycin resistant E. coli, and the second is insulin. Medicinal and therapeutics. GMOs are a source of such kind of vaccines and drugs. Example, humulin. Humulin is a human insulin that was made by a bacteria. So next is aquatic life. GMOs can be a source of modified aquatic life to increase the growth rate of edible fishes. Basically, scientists transferred the growth hormone to the salmon fishes to increase the growth rate of salmon, to increase the availability of salmon fishes as a food source. The next is insects. GMO technology can also be used to control the growth of harmful insects. Example, diamondback moth. How they have controlled the harmful insects through the diamond moth. They made a diamond moth जो कि बेसिकली एक मेल मॉथ थी, कि उस मॉथ को इंजीनियर किया गया बिकॉज कि वो जो फीमेल मॉथ्स हैं उनको किल कर दे, ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो आगे ना बढ़े, क्योंकि ये मॉथ्स जो हैं वो पेस्ट वर्क कर रही थी और सारे प्लांट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही थी. So the second is human. It is unethical but has done in 2018. Example, Lulu and Nana.
लूलू एंड नाना फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हैं वो किड्स थे, जो ही जियांगकोई जापानीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्हें जो है इंजीनियर्ड किया. He first took sperms from five males जो unfertile थे और HIV positive थे. Then he washed off the HIV from the sperms and that fused those sperms with the five different types of ovums. Then after fusion, he used the Cas9 CRISPR-Cas9 technique to edit the gene CCR5 that is able to produce receptor proteins. Those proteins are utilized by the HIV virus. HIV virus उन प्रोटीन को सरफेस प्रोटीन को जो है वो यूज करके ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है. तो उन प्रोटीन को एडिट किया था CRISPR-Cas9 के थ्रू एडिट, जिसमें वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गए थे और HIV उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकता. और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था 2018 का, बट अनएथिकल था. तो जो ही जियांग थी उनको 3 years प्रिजन में रखा गया और 3 million का फाइन हुआ. So the last is animals and mammals. GMOs are a source of modified animals that can help to make animals able to produce increased amount of desirable products. Example, milk, eggs, nutritional meat, etc. So here is the chart. That is the example of BT cotton. Now, how BT cotton was made? First, the gene from Bacillus thuringiensis taken and constructed into the plasmid. This plasmid was incorporated into the cotton plant, and then these plants are used for plant propagation. और इस तरह BT cotton जो है वो produce हुआ. So here we are talking about the biosafety concern related to GMOs. कि बायोसेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं. अब बायोसेफ्टी कंसर्न्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ह्यूमन हेल्थ होती है कि ह्यूमन हेल्थ शुड नॉट बी अफेक्ट बाय जीएमओस, कि ह्यूमन हेल्थ पे जीएमओस का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो. और जो सेकंड है वो फूड के, जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे ह्यूमन हेल्थ पे कोई नुकसान ना हो, जैसे टॉक्सिन्स ना हो या उसके अंदर जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो किसी मॉडिफाई ना हो जाए मजीद, और उनके अंदर मजीद वायरुलेंट प्रॉपर्टीज आकर वो हमें किसी तरह नुकसान ना पहुंचाएं. द थर्ड इज एनवायरनमेंट एंड अदर स्पीशीज. बायोसेफ्टी का कंसर्न एनवायरनमेंट और उन स्पीशीज से भी है जो हमारे हैबिटेट में मौजूद हैं, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर इंसेक्ट्स, के उन पे कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े. यहाँ पे एग्जाम्पल आती है बीटी कॉटन. अब जब बीटी कॉटन बनाया गया तो उन्होंने एक स्पेसिफिक स्पीशी को टारगेट किया था जो पेस्ट थे, वो इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन उनकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू दूसरे इंसेक्ट्स पे भी असर पड़ा और अदर स्पीशीज को भी इससे नुकसान हुआ. तो ये बायोसेफ्टी कंसर्न था हमारा कि हमें इनकी एहतियात करनी चाहिए. और जो लास्ट है वो रिसर्च एरिया, के इन केस हम जीएमओस पे काम करें तो हमारे रिसर्च एरिया जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे किसी को कोई नुकसान ना हो. जैसे अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हमने या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया है तो उससे किसी और इंसान को नुकसान ना हो. अगर यहाँ पे हम एग्जांपल अगर कोरोना वायरस की लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत से लोग ये बताते हैं कि कोरोना वायरस एक लैब मेड मैन मेड है, तो उससे किस तरह लोगों को नुकसान हुआ. तो ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत बायोसेफ्टी कंसर्न्स में अहमियत रखते हैं. सो द नेक्स्ट इज हाउ टू चेक द सेफ्टी. अब जीएमओ जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन गए. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेफ हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, एज अ फूड, एज अ इन्वायरमेंट और रिसर्च एरिया के लिए हैं सेफ या नहीं. तो यहाँ पे रेगुलेशंस आती हैं. ये 2 टाइप्स की रेगुलेशंस होती है, यूएस और यूरोपियन. यूएस जब भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या कुछ भी हम बना लेते हैं वो फिर जाते हैं रेगुलेशंस के पास और चेकिंग के लिए. यूएस जो है वो चेकिंग करता है, जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एफडीए, फूड एंड ड्रग एजेंसी. तो यहाँ पे जो ईपीए है वो उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स देखता है कि ह्यूमन पे उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं. यूएसडीए ट्रांसपोर्टेशन के, अगर उन जीएमओस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसके थ्रू तो कोई कंटामिनेशन या कोई इस तरह हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, और प्लांटिंग में तो नहीं हो रहे, और एफडीए में न्यूट्रिशनल वैल्यू पर फोकस किया जाता है. और इस तरह ये चेकिंग होकर इसमें लेबलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन
रेगुलेशन कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई रेगुलेशंस में उन जीएमओ को चेक करते हैं कि उसमें लेबलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, कि अगर लोग उसे कंज्यूम भी करें तो उसका कोई एज़ सच नुकसान नहीं है। सेकंड, यूरोपियन, यहाँ चेकिंग होती है, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी चेकिंग करती है, जो इवैल्यूएट करती है ह्यूमन और एनवायरमेंटल की बेसिस पे और उसे अप्रूव करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी कि जो जीएमओ 0.9% जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, ये एक रेशो होता है कि अगर इससे ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं तो उनको लेबल किया जाए कि वो हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकते हैं। So next is the ethical issues. So um, here ethical issues were started from 1972 जब first genetically modified microbe जो है वो बनाया गया, तब ये एथिकल इश्यूज स्टार्ट हुए। लोगों ने अपने क्वेश्चन रेज किए कि अगर बना लिया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है लैब से इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाए कि और ये इस तरह के डिजीजेस कॉज करे जो पहले नहीं कर सकते थे और इतना ज़्यादा इसके अंदर वायरल प्रॉपर्टीज़ हो जाए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एथिकल इश्यूज में आती हैं। सबसे पहले कि जो बैक्टीरिया बना है, अगर उससे एनवायरनमेंट में कोई नुकसान हो गया तो ये एक एथिकल इशू है। जो सेकंड है, अननोन रिजल्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ड्रग्स, के जो ड्रग्स हैं हमने वो जिस टारगेट के लिए ड्रग्स मॉडिफाई किए हैं, लेकिन अगर उसकी बजाय वो कोई और टारगेट पे चले जाएँ, जो हमारा टारगेट ना हो, किसी और पॉइंट पे चले जाएँ, म्यूटेशंस कॉज़ कर दें या मोसासिज़म कॉज़ कर दें। मोसासिज़म इज़ द लास्ट पॉइंट, आई विल डिस्कस इट लेटर। And the fourth is biopiracy. Biopiracy is unethical. It is unauthorized use of bioresources कि इसमें किसी और ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी परमिशन के बगैर वो प्रोडक्ट कोई कंपनी यूज़ कर रही है और उसे पे भी नहीं कर रही, तो ये बायोपायरेसी है और इट इज़ अनएथिकल इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड द नेक्स्ट इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टर्ड प्लांट्स ऑन इकोसिस्टम, के जो ऑल्टर्ड प्लांट्स बनाए गए हैं अगर उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट पे होता है तो वो अनएथिकल है। जस्ट लाइक इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट प्लांट्स जो बनाए जा रहे हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट दूसरे स्पीशी पे भी हो रहा है। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमन और जर्मलाइन मॉडिफिकेशन। ये अनएथिकल है, रिलीजियस उससे भी और दूसरे सोशल हिसाब से भी और एथिक्स के हिसाब से भी ये अनएथिकल है। हम ये नहीं कर सकते, स्पेशली ह्यूमन और जर्मलाइन मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये हम अगर कोई जीएमओ बना रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि इसके इफेक्ट्स इनके ऑफ स्प्रिंग में भी हो, और अगर हम ह्यूमन में करते हैं तो हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स के लेवल पे जाकर ये काम करना होता है और पॉसिबिलिटी होती है कि हम अगर एम्ब्रियोनिक लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाए, और ये रिलीजियस हिसाब से बहुत अनएथिकल है, ये हम नहीं कर सकते। एंड द लास्ट इज मोसासिज्म। मोसासिज्म इज बेसिकली द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, कि जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनकी बेसिस पे कोई म्यूटेशंस बॉडी में ना हो जाए जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, तो ये अनएथिकल है। So here is the pros and cons of GMOs. GMOs can help us to increase crop yield. Use of genetically modified organism can reduce the global हंगर प्रॉब्लम। ये इस तरीके से कि अगर हम उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा कर दें कि वो जल्द से जल्द जो है उनकी ग्रोथ हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो इस तरह हंगर प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो मोर पीपल मे गेट आउट ऑफ पोवेरिटी, ये इस सेंस में है जैसे हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो पोवेरिटी भी कम होगी और हंगर प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। नेक्स्ट इज जीएमओस में कंटेन हायर अमाउंट्स ऑफ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, कैन मेक प्लांट्स मोर रेजिस्टेंट, हम इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइडल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जीएमओस में हेल्प टू लोअर फूड प्राइसेस, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो फूड प्राइसेस भी कम होंगे। जैसे हम कहते हैं कि मौसम में फल आता है या फ्रूट जो भी आता है उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो मौसमी होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रोडक्शन करवाएंगे 12 मंथ्स तो उसकी जो वैल्यू है, प्राइसेस हैं, वो लो हो जाएंगे। एफिशिएंट लैंड यूज़, के जो लैंड वगैरह बिल्कुल बंजर पड़े हैं, इतने फर्टाइल, उन्हें फर्टाइल बना सकते हैं और हम उसका यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ईजी टू कल्टिवेट जीएमओज, लेस वर्क इज नीडेड इन एग्रीकल्चर,
टेस्ट ऑफ फूड में बी इम्प्रूव थ्रू GMOs, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो इसका टेस्ट वगैरह है वो इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन सेव वाटर एंड एग्रीकल्चरल प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपनी सॉइल को इतना ज़्यादा फर्टाइल बना रहे हैं कि उसमें वाटर वगैरह की भी हम कम दे रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि वो अच्छा, जैसे कंपोस्ट वगैरह होती है कि वो बहुत अच्छा हमें प्रोडक्ट दे रही है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स वगैरह के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। लॉन्गर शेल्फ लाइफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जैसे हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो का पढ़ा। अब कौन क्या रिलीजियस कंसर्न रिगार्डिंग GMOs, जैसे कि हमने ह्यूमन जर्म लाइन में मॉडिफिकेशन में किया, डिस्कस किया। ह्यूमन शुड नॉट प्ले गॉड, कि ये जिस तरीके से भी GMOs के थ्रू हम दूसरी स्पीशीज को नुकसान दे रहे हैं, उनका सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये भी नहीं ठीक रिलीजियस लिहाज से। स्प्रेड ऑफ सीरियस एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स, जैसे कोरोना वायरस, अगर इस तरीके के बायोवार्स के लिए यूज किए जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है। वी मे अंडर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ GMOs, पॉसिबल सेफ्टी इश्यूज ऑफ GMOs, के सेफ्टी इश्यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन लोग कुछ इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते कि जैसे अब मार्केट में भी कुछ ऐसे GMOs आते हैं कि उनको लेबल नहीं किया जाता और वो आगे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। GMOs में ऑल्सो ऑल्टर द DNA ऑफ नेचुरल प्लांट्स, जैसे कि मैंने म्यूटेशंस की बात की थी। एलर्जिक रिएक्शंस रिलेटेड टू GMOs के जैसे बीटी कॉटन वगैरह बनने से कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है अगर क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए या क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। GMOs may have the potential to, may make us more vulnerable to serious diseases. Insufficient objective related to GMOs. Use of GMOs is not natural. May lead to antibiotic resistance, के अगर हम कोई ऐसे बैक्टीरियाज अपने फूड में यूज़ करते हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और अगर वो हम कंज्यूम करें तो उससे पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और वो बैक्टीरिया उसके रेजिस्टेंट हो तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा। GMO लेबल्स आर ऑफन मिसिंग और मिसलीडिंग, ये जैसे हमने डिस्कस किया कि लेबलिंग नहीं होती। नेक्स्ट, here is the status of GMOs in Pakistan. The only GMO approved and grown in Pakistan is the crop, that is BT cotton, mainly grown in the southern Punjab. Pakistan Atomic Energy Commission provided about 40,000 kg seed of insect-resistant cotton varieties. The regions in which BT cotton was grown in included Bhavalpur, Multan, Muzaffargarh, and Karor Pakka, and the outcomes and results were encouraging. So here is the conclusion. GMOs present both positive and negative aspects to society as a whole. There is nothing that suggests that GMO are unsafe to consume, but we don't know about the future risk. God created human to take care of other creatures and not to harm, as it is wonderful to live a natural and balanced environment. GMOs can only give temporary solution to a problem, as we have not know it might cause us a future harm. Ultimately, GMOs are still a relatively premature technology, and in the developmental process, only time will reveal their ultimate effects on humans. So these are the references. Thank you. ओके बच्चे, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है? सर लेट आए थे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना था ज़हरा। एक तो एक मोबाइल में सर दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो हम लैपटॉप से ले रहे हैं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतना छोटा छोटा सा है। ऊपर करना थोड़ी सी स्लाइड, स्टार्टिंग से थोड़ा देख लूं मैं, फिर तुमसे सवाल पूछता हूँ। ओके। तो आपने सवाल जहन में नहीं था, अब आप क्रिएट करेंगे? नहीं सर, सवाल जहन में है, मैं जरा देखना चाहूंगा ना कि ऊपर इन्होंने क्या बताया सर। सर प्रेजेंटेशन भी तो देख लेना हम एक बार, फिर हो सकता है ऊपर से भी कुछ सवाल निकल आए। अच्छा ठीक है ज़ारा, बायो एथिकल जो आपने वो कंसर्न्स डिस्कस किए थे, तो उसमें मुझे जरा ये बताओ कि जो GMOs हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका कोई एग्जांपल दो कि भाई कोई एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से हार्म पहुंचा सकता है। आप लेट आए हो, मैंने बताया था कि जैसे बीटी कॉटन जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, तो वो एक स्पेसिफिक स्पीशी के लिए बनाया गया था कि वो इंसेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट्स उनके थ्रू दिया। लेकिन जब क्रॉस कंटामिनेशन के थ्रू या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू वो दूसरे जो इंसेक्ट्स थे उनके ऊपर भी उसका असर होने लगा और वो भी डेड होने लगे, जिनको डेड नहीं होना चाहिए था,
क्योंकि एक नेचुरल चेंज चल रही होती है, नेचुरल फिनोमेना है कि वो फिर उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि दूसरे जो इंसेक्ट्स थे वो भी किल होना शुरू हो गए थे, जिनके लिए ये नहीं बनाया गया था। हाँ, ये ठीक है कि इंसेक्ट, लेकिन आपने ह्यूमन की बात की थी कि ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहा हूँ, उस पे किस तरीके से जी। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मैं ये इस तरह हो सकता है कि जैसे हम कोई फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अब आपको जैसे पता है कि हम जब जीएमओस बनाते हैं तो उसमें वेक्टर्स का यूज़ करते हैं और बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं, तो उनके थ्रू हमारे अंदर म्यूटेशंस हो सकती हैं। और मोसेसिज्म मैंने डिस्कस किया था, पॉइंट ये रहा कि वो म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में, और ये फ्यूचर इसका रिस्क है कि ये हो सकता है, और इसके ऊपर काफ़ी बहस-ओ-मबाहिस और एथिकल इश्यूज़ आ रहे हैं कि इनके पर फ्यूचर रिस्क हो सकता है क्योंकि म्यूटेशन कॉज हो सकती है। और जैसे अगर हम कोई ड्रग यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कंज्यूम हुआ हुआ है और वहाँ पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो उसके रेजिस्टेंट है, तो हमें उस ड्रग का भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ज़हारा, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ ये पूछनी थी कि आपने जो लेबलिंग की बात की तो उसको पूरा डिस्कस नहीं किया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मोस्टली लेबलिंग जो जीएमओस पे लेबलिंग क्यों नहीं हुँ। होती? क्योंकि एक प्रॉपर स्लाइड होनी चाहिए थी ना लेबलिंग के बारे में कि जीएमओस पे लेबलिंग के लेबलिंग बारे में होती है। मैंने रेगुलेशन का बताया था। असल में लेबलिंग मेरा टॉपिक सिर्फ़ नहीं था, इसलिए मैं अलग से क्या नहीं, डिस्कस टॉपिक नहीं, करती, मैं वही लेकिन कह रहा हूँ, एक स्लाइड होती ना कि रेगुलेशन जीएमओस में पे बच्चे मैंने आर्ग्यू ना करें, आर्ग्यू ना करें, बताया था। बहस ना रेगुलेशन है, करें, ये देखो आर्ग्यू ना यहाँ पे करें। मैंने ये बताया था कि यूएस और यूरोपियन, ये 2 रेगुलेशंस हैं जो इनको उनका होल्ड होता है जीएमओस के ऊपर। तो जो यूएस जो हैं वो 3 डिपार्टमेंट से उनको रेगुलेशन के थ्रू टेस्ट वगैरह करके जब आगे प्रोसेस करती हैं, तो उनमें लेबलिंग नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, नहीं इतना होती। लंबा नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लेबलिंग क्यों नहीं करते वो? अक्सर बेशतर जो है वो जीएमओस पे लेबलिंग बायोपायरेसी क्यों नहीं की होती जाती? है, वो बायोपायरेसी होती है कि वो इसलिए ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि ये जीएमओ है, इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो लोग उस पे ट्रस्ट इतना नहीं करते हैं। तो बायोपायरेसी ये होती है और ये अनएथिकल है। ओके बच्चे, ओके, गुड, वेरी गुड, अच्छी आपने सर प्रेजेंटेशन। मेरा भी एक सवाल है। जी बच्चे, पूछो जल्दी से। जी। सर मेरा सवाल ये है कि देखें, अगर हम जीएमओ क्रॉप जो है, जीएनएफ फूड जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो अगर हम मार्केट में ला रहे हैं और जो मतलब हमारी पब्लिक है, जो हमारे कस्टमर है, वो उस पर रिलाई नहीं कर रहे, तो हम इसके लिए क्या क्या मतलब स्टेप कर सकते हैं कि वो जीएमओ जो प्रोडक्ट है उस पर रिलाई करें? हम उनको ज़्यादा से देखो, कोई भी ये चीज़ एक मार्केटिंग होती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अपना लाते हैं ना, तो हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा उनको एडवांटेजेस बता रहे होते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, और कुछ एक्सपीरियंसेस ला रहे होते हैं। वो एक्सपीरियंस वही लोग होते हैं जिन्होंने वो चीज़ प्रोड्यूस की हुई होती है और वो उनके साथ के लोग होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के थ्रू कि हम बताएँ लोगों को, उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे बताएँ, तो हम इस तरह लोगों का ट्रस्ट ले सकते हैं। जिस तरह हर न्यू प्रोडक्ट का होता है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी प्रॉपर मार्केटिंग होती है। बायो मार्केटिंग हम इसकी कर सकते हैं कि हम अपनी बायो जो भी हमारी चीज़ें हैं और जीएमओस हैं, हम उनकी मार्केटिंग करके लोगों का ट्रस्ट लें उस चीज़ पे, और अपने एक्सपीरियंसेस बताएँ कि किसका क्या एक्सपीरियंस गुज़रा, और उसके ये बताएँ कि कोई भी डिसएडवांटेज अब तक नहीं आया, तो इस तरह लोगों का ट्रस्ट उस पे बढ़ सकता है। ओके, गुड बच्चे। ठीक। अच्छा, आज और कौन देगा प्रेजेंटेशन आप लोगों में से? दानियाल, जी दानियाल सर। प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन दे, शाबाश बच्चे, जी। शेयर करें। जी बच्चे, स्टार्ट करें। जी बच्चे, स्टार्ट करो। जी, हमने देख लिया आपकी स्लाइड, अब स्टार्ट भी तो करो। शो हो रही है आपकी स्लाइड सबको? दानियाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दानियाल, आवाज नहीं आ रही? यस सर, शायद ये बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही हमें। उनका माइक ऑफ है इसलिए आवाज नहीं आ रही। बच्चे माइक अपना ऑन करो। अभी आ रही? अब आ रही है बच्चे, अब करो, अब इसको रिप्रेजेंट जी। करो। हाँ, अब स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा टॉपिक जो है वो बायो एथिक्स है। ये
टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले एथिक्स को डिस्कस करते हैं। एथिक्स जो और जो मॉरल फिलॉसफी जो होती हैं, वो बेसिकली जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में के अंदर, तो उसको करने के जो कुछ तरीके होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं, ताकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उससे जो दूसरी चीज़ें लिंक्ड हैं, भले ही वो लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स हों, जो उनसे मुंसलिक हैं, जो हमारे काम के से अफेक्ट हो रही हैं, उन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, वो बेनिफिट में ही जाए हमारा काम, और दूसरे हमारे फ़ायदे से जो है वो नुकसान ना हो। तो इसको फॉलो करने के लिए जो रूल्स हैं, जो स्टडी है, वो एथिक्स के अंदर आती है। बायोएथिक्स में बायोएथिक्स में मतलब जैसे हमारे जो एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, या फिर जो अब मेडिसिनल लेवल पे ले लें, जो डॉक्टर्स वगैरह की होती हैं, उसमें भी बायोएथिक्स इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारे नॉर्मली जो अफेक्ट हो रहे होते हैं, वो लिविंग थिंग्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो हमारा कोई भी जो है एडवांसमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, या हमारा कोई भी पॉलिटिकल एक्ट या लॉज या थ्योरी जो है, वो इस तरह की ना नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाइफ फॉर्म्स हैं, वो अफेक्ट हो रही हैं, उससे वो नेगेटिव उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा हो। इसके अलावा बायोएथिक्स जो है वो एक जो है वो सारे एक ऐसी प्लेटफॉर्म फॉर्म हो गया है, जिसके ऊपर सारे रिलीजियस जो है वो व्यूज़ आके, और जो जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेज़ हैं, वो उन्होंने आके एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, जिसे फ़ॉलो करेंगे हम, तो उससे कोई भी जो है वो रिलीजन, कोई भी सोसाइटी के लोग जो हैं, थिंकिंग के लोग, वो उससे एडवर्स इफ़ेक्ट में नहीं जाएँगे, और जो इफ़ेक्ट में जा रहा होता है, उसको एक्सपेरिमेंटेशन को रोक दिया जाता है। तो उसके अंदर जी, सारी चीज़ें जो हैं, ये बायोएथिक्स के अंदर आती हैं। इस्लामिक बायोएथिक्स को डिस्कस करते हैं। इस्लामिक बायोएथिक्स जो है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट है वेस्टर्न बायोएथिक्स से, क्योंकि उसके जो मोस्टली जो पॉइंट्स हैं, जो कि उसके जो रूल्स हैं उस बायोएथिक्स के, इस्लामिक बायोएथिक्स के, वो ज़्यादातर कुरान के ऊपर, सुन्नह के ऊपर और शरीयत वगैरह के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं। तो वो कभी-कभी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं वेस्टर्न बायोएथिक्स से। क्यों उसमें जो सबसे ज़्यादा, जैसे आप वो एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वो अबॉर्शन वगैरह की जो एग्ज़ाम्पल होती है, उसके अंदर जो है वो नॉर्मल जो वेस्टर्न बायोएथिक्स है, वो उसको अलाउ कर देती है कि इट्स ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। इस्लामिक के अंदर भी अलाउ है, लेकिन वो जो है वो फीटस है, उसको एज़ अ ह्यूमन रिस्पेक्ट देने का इस्लाम के अंदर है, तो उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इसके अलावा जो दो दो जो ऑर्गनाइज़ेशन है, ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी, इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज़, इनका जो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है, वो बंदे की डेथ के ऊपर है, कि जो ऊपर वाली जो है इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी जो है, वो ये बोलती है कि जो ब्रेन डेड ऑर्गेनिज़्म है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो है वो इक्वल होता है, कि अगर कार्डियोवास्कुलर तौर पे कार्डियक अरेस्ट से अगर कोई बंदा है कि दिल बंद हो जाता है, तो उन दोनों को वो डिसीज़ पर्सन जो है वो सेंटेंस करते हैं कि हाँ, ये बंदा मर गया है। जबकि जो इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है, वो ये बिलीव करती है कि जो ब्रेन डेड ऑर्गेनिज़्म है, वो एक कंप्लीटली डेड ऑर्गेनिज़्म में, और जो एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म, उसके बीच की स्टेज होती है, तो वो उसको एक डिसीज़ पर्सन कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा जो वेस्टर्न बायोएथिक्स वगैरह है, उसके अंदर अपने मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो वेल करते हैं कि मतलब जैसे मैं मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशंस में या डोनेशन वगैरह में यूज़ कर लिया जाता है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इस तरह के लोगों ने डोनेट की हैं अपनी बॉडीज़। तो वो भी हमारी इस्लामिक रूल्स के हिसाब से जो है वो अलाउड नहीं है, इस्लामिक बायोएथिक्स उसको अलाउ नहीं करती। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स, बायोएथिक्स के 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जो कि मोस्टली आपको लगेगा कि मेडिसिनल बायोएथिक्स से रिलेटेड हैं, लेकिन ये जनरली भी अप्लाई हो सकते हैं। ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नेंस मीन्स के जब भी कोई डॉक्टर है या कोई पेशेंट जो ट्रीटमेंट उसकी चल रही है, या कोई पर्सन जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी अपनी राय को भी आप वैल्यू दें, कि हाँ, अगर वो कहना चाहता है कि जैसे मैं ये नहीं करना चाहता, मेरे लिए प्रोसीजर चेंज करें, या कोई लेस हार्म हो या तकलीफ वाला प्रोसीजर ना हो, उससे हो, अगर वो प्रोसीजर यूज़ हो सकता है तो वो यूज़ करें। इसके अलावा जो है कुछ लोग, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, जैसे मेल पेशेंट्स जो होते हैं, वो फीमेल डॉक्टर से कंफर्टेबल नहीं होते। तो उस ये कॉमन चीज़ें जो कि हो सकती हैं, तो उनको भी आप एथिकल इश्यूज़ के अंदर लेके आ सकते हैं कि आप
ठीक है, वो जिस चीज़ से कंफर्टेबल है वो करें। इसके अलावा बेनिफिशियंस के मतलब आपका जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो हमेशा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि आपको जो है कोई भी काम हो उससे एडवर्स इफेक्ट किसी के ऊपर ना आए। नॉन मेलिफिसेंस आपका जो काम है वो कम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर कोई प्रायोरिटी बेस नहीं होनी चाहिए कि मतलब जैसे कोई इस तरह का पेशेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस आता है कि एक जो पेशेंट है उसकी मतलब जैसे हालत काफ़ी सीरियस है और जो है वो दूसरा जो 2 पेशेंट्स हैं उनको कोई ऑर्गन की ज़रूरत है या कोई इस तरह का इश्यू है कि जो आप उससे बंदे से जो बुरी कंडीशन में उसे सेव कर सकते हैं मतलब तो आप उसको मरने के लिए छोड़ दें। तो डॉक्टर्स के पास मतलब इस तरह के केसेस भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होती हैं। जस्टिस हो, फेयरनेस हो मीन्स कि आपके सारे जो पेशेंट्स हैं वो आपको इक्वली ट्रीट करें। ऐसा ना हो कि कोई आपका नेपोटिज्म में या कोई फैमिली मेंबर है तो आप उसके लिए छोड़-छाड़ के जो है वो दूसरे पेशेंट को चले जाएँ। तो ये सारे जो हैं ये एथिकल इश्यूज़ के अंदर आते हैं। इसको बायोएथिक्स का जो है वो कुछ हिस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के, मेडिसिनल साइंसेज़ के कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे बायोएथिक्स को फिर बाद में उनको कंसर्न करना पड़ा कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ह्यूमन की पूरी जीन को जो है वो सीक्वेंस किया गया, उसको इन्फॉर्मेशन उसकी इतनी कोर इन्फॉर्मेशन जो है वो हैंडल की गई, तो उसमें भी एक जो है वो प्राइवेसी को मेंटेन करना कि कौन इसके जो डेटा है उसको हैंडल करेगा, कौन नहीं करेगा, और कोई गलत काम में यूज़ ना हो। ये सारी चीज़ें स्टेम सेल रिसर्चेस इनको भी यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ भी काफ़ी एथिकल इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस इसमें पीजीडीज़ जो होते हैं मीन्स के मतलब जो बर्थ से पहले जो फीटस होता है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो म्यूटेशंस होती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट किया जाता है, उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर वो करेक्ट नहीं हो सकता तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, एम्ब्रियोनिक को वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ये 5-6 पॉइंट्स हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स जिसमें क्लोनिंग वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाती है। और जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग वगैरह जो ह्यूमन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग होती है, ये सारे पॉइंट्स हैं स्कोप्स हैं बायोएथिक्स के, जिसके अंदर जो है वो एथिक्स को उसके बाद बहुत ज़्यादा कंसीडर किया गया, इसको मैंडेटरी पार्ट बनाया गया हर एक्सपेरिमेंटेशन का। 5 मेजर इश्यूज जहाँ पे जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं एबॉर्शन से रिलेटेड, जैसे इस्लामिक मैंने पहले डिस्कस किया था, इस्लामिक रूल्स जो है उसके हिसाब से अलग हैं और जो वेस्टर्न जो है वो अलग हैं। यूथनेशिया जो है ये होता है कि इसके अंदर यूथनेशिया के अंदर आप जो है वो जो एक प्रोसीजर होता है कि आप मतलब जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो आप उसको डाई होने के लिए छोड़ दें। मीन्स के अगर उसकी कंडीशन ऐसी है कि आप उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, आप उसको जो है वो उसको बेटर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, उसको सेव नहीं कर सकते, तो आप उसको एक उसकी अपनी विल के ऊपर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको जो है यूथनेशिया बोलते हैं और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि आपको लास्ट मिनट तक भी जो है वो उस लाइफ को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। यूजेनिक्स होता है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन होती है कि आप जो है एक ह्यूमन के मतलब से एक कास्ट है या एक कोई भी रीजन के लोग हैं, उनके अंदर वो डिज़ीज़ है, तो आप दूसरे रीजन के लोगों से उसकी जेनेटिक मैनिपुलेशन करके उनकी डिज़ीज़ को, म्यूटेशंस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी वे में यूज़ हो सकती है और नेगेटिव वे में भी यूज़ हो सकती है। मीन्स कि आप किसी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है, तो वो बायो वॉर्स वगैरह के अंदर और उसको इस तरह से एक टारगेटेड एरिया को टारगेट करने में जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ह्यूमन क्लोनिंग बहुत बड़ा इशू है एथिक्स के हिसाब से कि उसमें जो है वो थेरेप्यूटिक लेवल के ऊपर कि आप ऑर्गन्स तो मतलब जैसे क्लोन कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को क्लोन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आते हैं स्टेम सेल रिसर्चेस भी, जो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर उनको मोल्ड किया जा सकता है, उनकी ट्रेट चेंज की जा सकती है। तो इससे भी मेजर इश्यूज हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज हैं जिसके अंदर जो है वो बायोएथिक्स को कंसीडर किया जाता है। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक एक स्लाइड ऊपर करें, यू। कोई क्वेश्चन? स्लाइड ऊपर करें आप, लास्ट स्लाइड दिखाएं मुझे।
ये क्या लिखा है नंबर 5 पे आपने? सर स्टेम सेल रिसर्च है। सेल इस तरह लिखते हैं? अभी मुझे ये स्टार्ट से पढ़ाना पड़ेगा, स्टेम सेल रिसर्च क्या होते हैं। ओह सर, ओ, ये आपको ये इस तरह आपको पढ़ाया गया है? नहीं सर, ये स्टेम सेल रिसर्च है ना, हाँ, सेल की स्पेलिंग मैंने सेल गलत है। रिसर्च है ना, वो सर भी देख रहा है, सेल रिसर्च है। अच्छा, यूथेंसिया आपने प्रॉपर्ली नहीं डिफाइन किया, क्या होता है यूथेंसिया? सर यूथेनेशिया जो होता है सर, मतलब जैसे एक ऐसी कंडीशन है, वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटमेंट है, कोई भी आप किसी चीज़ को अगर सेव नहीं कर सकते तो आप उसको मरने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप छोड़ दें। आपने कहा आर्गन, आर्गन के लिए आपने इसका एग्जांपल दिया। आर्गन की एग्जांपल नहीं होती है, ये होल बॉडी के लिए एग्जांपल होती है, ठीक है। तो बाजू का हम जो हमारे रिलीजन के अंदर भी इस तरह होते हैं कि अगर इलाज नहीं होता उसको घर पे छोड़ देते हैं, ठीक है, या उसको छोड़ देते हैं, जवाब दे देते हैं डॉक्टर्स सर, डॉक्टर वही को आप वाली कहते हैं कंडीशन में ट्रीटमेंट आपको आप बता बंद रहा कर देते हैं, तो क्या वो भी यूथेंसिया के अंदर आ जाता है? हूँ। सर यूथेनेशिया के अंदर आता है। अच्छा, तो फिर वो तो आप जिस तरह कह रहे थे यूथेंसिया तो अलाउ नहीं है, ये तो जो है इथिकल इसके अंदर जो सर नहीं। अलाउ नहीं है, ये इश्यूज है, मतलब कि अगर आप उसका ऐसा ट्रीटमेंट है कि आप उससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक जो है केस बताया था कि एक पेशेंट है, उस पे आप जो है वो इस कदर केस बिगड़ गया है कि आप उसको संभालें तो भी वो मतलब जैसे वो पेशेंट की डेथ हो सकती है, और जो दूसरा जो पेशेंट है उसको कोई ऑर्गन चाहिए सिर्फ, तो क्या उसको तो आप मरने जो के है लिए वो चाहिए? उसको मरने के लिए छोड़ दें, और आप उसको जो जो बच्चे, दूसरा पेशेंट मरने है के जो लिए नहीं काफी छोड़ा ज्यादा जाता। सीरियस हालत में है उनको। हमारे जो रिलीजन के मुताबिक उसको मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता, उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट होती है तो ट्रीटमेंट की जा सकती है, जी जी अदरवाइज उसकी केयर करनी पड़ती है। अच्छा, यूथेंसिया असल में जी ये होता है कि यूथेंसिया आप किसी ट्रीटमेंट की थ्रू किसी को यानी कि खत्म कर दें, उसकी बॉडी को खत्म कर दें, यानी कि जी जी, अटेम्प्ट सुसाइड, यानी कि एग्री करवा के उसकी इसमें 2 से 3 इसकी तकलीफ आसान करने के लिए। हाँ, 3 से 4 इसकी फर्दर मोर टाइप्स है। जी बच्चे, आप लोगों में से कोई पूछना चाह रहा है इसमें? जी सर। हाँ, पूछें। सर मेरा सवाल है कि जो मतलब दानियाल ने कहा कि हमारे एथिकल जो बायोएथिक्स के कुछ प्रिंसिपल हैं, तो ये जो मतलब तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको मतलब फॉर्म करने वाली बॉडी क्या है, और इसकी मतलब बिगनिंग कहाँ से हुई थी ये बायोएथिक्स की? जी बच्चे, यह कहाँ से बिगनिंग हुई थी, कौन काम करता है? सर ये जो मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह बताए हैं, ये इसी टाइम से जो है वो इथिक्स को कंसर्न करना शुरू किया गया था, बायोएथिक्स को, जब यहाँ पे तो आके केसेस अराइव हो रहे थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है मेरे ख्याल से 90s में 1999 में स्टार्ट हुआ था, और मेरे ख्याल से 98 या 2001 में कंप्लीट हो चुका था, तो ये 90s से है बेसिकली। जी, उसी 19th सेंचुरी से जो है वो इसकी स्टार्ट है। इसके अलावा नाजीज वगैरह जो थे, उन्होंने भी इसको उसके ऊपर जो है वो कुछ टॉपिक्स वगैरह लिखे थे, उसको डिस्कस किया था। ये काफी बैक अच्छा डेट बच्चे, है जिस तरह बायोएथिक्स। यूनिवर्सिटीज के अंदर इथिक्स कमेटी होती है, बायोएथिक्स या एथिक्स कमेटी होती है, इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी इथिकल कमेटीज होती हैं, ठीक है। जी अच्छा, जी। कोई और बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप लोगों में से? सर मेरा एक सवाल है। जी बच्चे। दानियाल, जैसे आपने स्टेम सेल रिसर्च का बताया, तो स्टेम सेल रिसर्च में एथिकल इश्यूज कहाँ पर आते हैं? एथिकल इश्यूज आते हैं जब आप वहाँ पे एम्ब्रियोनिक लेवल पे जाके एम्ब्रियो को यूज़ किया जाता है स्टेम सेल्स के अंदर, स्टेम सेल्स लेने के लिए या इस तरह से, तो फिर वो ऐसा होता है कि आप उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ वो एक एम्ब्रियो जो है वो एक फीटस